everyone, Namaste. मैं हूँ अनन्या भट्टाचार्य. I am the director of banglanatak.com. We are a social enterprise working for last 25 years across India, and a key part of our mission is promoting and protecting gender rights. Today is Women's Equality Day, और आज का जो थीम है आज वीमेन इक्वलिटी डे में वो है उसके अधिकार हमारा भविष्य और अभी. Her rights, our future, right now. So it essentially highlights the importance of women's rights and empowerment is for a better future for all of us. And our focus today is on rural India. So we have named our program From Rural Roots to Creative Heights, celebrating stories of success. We are very happy that we have organizations from across India. Gujarat se aaya hai Karigar Clinic. From Nagaland, we have Creo from the Zapami village, and from Bengal, we have Anindita, who is representing, or she's rather the founder of our organization, Equidiversity, and we have Lakshmi, who is a weaver with whom we have worked along for a long time as banglanatak.com. Now, if you look at the Sustainable Development Goal, जो SDG goals है, उसमें SDG Goal 5 जो जेंडर इक्वलिटी के बारे में है, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है. So our latest report says that our score is only 49 in 100. So we are really lagging behind. So today, you people are really giving leadership at the grassroots. आप लोग सब लीडर है, और आपसे आज सवाल जो है वो आप कैसे जो भी चैलेंजेस है कैसे उसका सामना कर रहा है और क्या एडवाइस है और क्या नीड्स है, इस बारे में हम 7:30 तक थोड़ा आलोचना और शेयरिंग के सेशन ये करेंगे. So, Arina, can you please share the profiles? So we have Anindita. Anindita Majumdar, founder director है Equidiversity Foundation. She is dedicated to advancing gender equality, and she's addressing all the dimensions, political, social और financial. उसके साथ है Sonali and Sumati, they are community leaders जो grassroots में काम कर रहे. Next, please. From Gujarat, we have Karigar Clinic. Karigar Clinic supports artisans by strengthening their skills, market access, and business growth. So आज उनसे हम वही सुनेंगे कैसे वो काम करते हैं. Dr. Nilesh Priyadarshi is the founder and CEO, while Nupur Kumari is the co-founder and creative director, and we thank all of you to be present today. और उनके साथ उनका दो एंटरप्रेन्योर भी है, शिल्पा पटालिया जो एप्लिक में काम करते हैं और काजल धनीचा जो क्रोशे का काम करते हैं. Next, please. Nagaland yet to join. Nagaland से Creo is trying to join. वो बहुत ही remote area है, इसीलिए network is always a challenge. And Creo works in a village called Zapami, और उधर they are giving leadership in developing उसका जो tradition है nettle fiber से loom में वो बनाते हैं कापड़, उस बारे में वो बात करेंगे. Next, please. Bangla Natak has been working for last 25 years, and we call our initiative Art for Life. Art for Life focuses on safeguarding heritage, professionalizing heritage skills, directly connecting artists to the market, and developing the villages as cultural hubs where people can go and not only learn about the art and the craft, but also establish business relationships. तो आज लक्ष्मी साहू हमारे साथ है. वो पश्चिम मिदनापुर का सबम जिला से आए हैं और she leads a self help group cluster, और करीबन 200 महिला के साथ वो काम करते हैं माधुर वीविंग के बारे में. थैंक यू लक्ष्मी আমাদের সাথে আজকে থাকার জন্য. Okay, thank you Arina, you can stop. Thank you. Thank you. So at this point I'll start with Anindita.
Political representation and leadership in local governance is a major challenge. We know that though in the panchayat system we have higher representation, parliament we are really scoring very low. So Anindita is really working on the issue, and Anindita, I won't spend too much time in telling about you. I want to hear from you in the next few minutes. What are you doing to bring about the change, and why you are working on economic empowerment? You started your journey for political empowerment, but then you are now focusing on economic aspects also. So please share. Thank you. Thank you, Anannadi, and thank you, Bangla Natak, for providing this opportunity. मेरा जो काम है, जो इक्विडाइवर्सिटी फाउंडेशन का काम है, वो है लोकल रूरल गवर्नेंस में औरतों का, खासतौर से औरतों का लीडरशिप और पार्टिसिपेशन एक्टिव करना, सुनिश्चित करना। तो आप लोगों को शायद पता है कि बंगाल में 50 मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन है लोकल गवर्नेंस में। और लेकिन इसके अलावा क्यों हम लोगों को ये लगा कि इसको लेकर काम करना पड़ेगा, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मैं महिलाओं के ऊपर जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर बहुत सालों से काम मैं कर रही हूँ। और मुझे जो मेन मुद्दा, जो एक इशू लगा, वो है घरों में और गवर्नेंस मॉडल में डिसीजन मेकिंग वो कैसे हो रहा है, और इन मुद्दे को, जेंडर इश्यूज, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इन मुद्दे को कितना इंटेंशनली गवर्नेंस के नजर से चेंज करने की कोशिश हो रहा है। तो यही एक समझ बनाने के लिए ये काम शुरू हुआ। और हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग 3 जिलों में काम करते हैं, पुरुलिया, साउथ 24 परगनास और सुंदरबंस में काम करते हैं। और हमारे जो मुद्दे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है महिलाएं, और जो महिला वोटर है, उनके साथ संबंध कैसे बनाया जाए ताकि गवर्नेंस में विमेन्स इश्यूज, चिल्ड्रंस इशू, जो मार्जिन के जो इशू है, उनको विजिबिलिटी कैसे मिले, और बजट में, प्लान में उनको कैसे दाखिल हो सके, और जो गवर्नेंस का जो मुद्दा है वो कैसे इंक्लूसिव किया जा सकता है, और कैसे औरतों को, डिसेबिलिटी इश्यूज को एक इंटरसेक्शनल लेंस कैसे लाया जाए। तो इसके लिए हम फोकस करते हैं औरतों, जो महिलाएं हैं, जो सिस्टम, मतलब जो चुने हुए आते हैं। हम लोगों को ये, जब हम शुरू किए, हम लोगों को ये लगा, ये हम लोगों को ये दिखी रादर एक सर्वे के थ्रू, कि जो ये मुद्दा बन जाता है नॉमिनेशन फाइल करने में, वो दिखा कि सिर्फ 22% विमेन को दूसरी बार टिकट मिल रहा है। मतलब हर बार ये नए लोगों को एक पॉलिटिक्स में लाने का एक मुहिम चल रहा है, वो एक तरह से अच्छा है। लेकिन जो औरतें 5 साल तक रह रही है और एक्सपीरियंस गैदर कर रही है और मुद्दे को लेकर वो बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, जब 5 साल हो जाते हैं, वो लोग फिर घर में लौट जा रहे हैं। दे आर गोइंग बैक टू देयर फैमिलीज एंड दे आर नॉट रिमेनिंग इन द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। सो दैट इज व्हाट वी फाउंड, ओनली 22% ऑफ women were getting re-elected. तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग सिर्फ औरतों को लेकर काम करते हैं, वो बात नहीं है। हम मर्दों, मतलब ओपिनियन लीडर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और पॉलिटिकल लीडर्स को भी लेकर काम करते हैं, ताकि मतलब पावर शेयरिंग कैसे किया जा सकता है, शेयर्ड लीडरशिप कैसे लाया जा सकता है। तो हम लोगों ने शुरुआत की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और लीडरशिप को लेकर, लेकिन ये हम लोगों को लगा कि औरतों का जो मुद्दे हैं, 3 खास तौर से मुद्दे उभर के आया। एक तो है जेंडर बेस्ड वायलेंस, दूसरा है लाइवलीहुड इशू, और तीसरा है बच्चों का मुद्दा। और खास तौर से कोविड के बाद इकोनॉमिक जो मुद्दा है, जो लाइवलीहुड का मुद्दा है, वो इतना बड़ा करके उभर के आया, क्योंकि इतना सारा डेट
महिलाओं के ऊपर बढ़ गया. So women were under a lot of debt we found, and in order to इसको लेकर कैसे काम किया जा सकता है, तो वो सोचते हुए हम लोग गवर्नेंस और महिलाओं को लेकर वो इकोनॉमिक इश्यूज को कैसे वो लाते हैं गवर्नेंस के द्वारा, और खुद क्या कर सकते हैं नैनो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से. तो हमारा जो मॉडल रहा है वो है नारी जागरण कमेटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए. अभी तो वो ग्रुप्स में बटा हुआ है हर ग्राम पंचायत में, और यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो महिलाएं हैं वो भी इस नारी जागरण कमेटी में जुड़ते हैं, ताकि वो एक कनेक्शन बिल्ड हो पा सके, सो दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन गवर्नेंस, लोकल पीआरआई सिस्टम, खासतौर से ग्राम पंचायत, एंड द वुमेन्स ग्रुप. सो देयर आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बट नारी जागरण कमेटी इज has a different objective. Its objective is political empowerment. Its objective is to hold power to account. Its objective is to raise women's and other marginalized issues into governance. So that is their big role, and also to address gender-based violence, to address livelihood issues. तो हम लोग थोड़े थोड़े करके थ्रू नारी जागरण कमिटीज इस तरह मतलब ये भी हम लोग फोकस कर रहे हैं ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, और क्लाइमेट चेंज ये सब लेकर वो एक होलिस्टिकली कैसे उनके लाइवलीहुड को देखे, ये भी थोड़े थोड़े करके हम लोग काम कर रहे हैं. हाँ, तो is my time up, or do I if you come, then we'll go if you're done, I'll ask your partners. Sonali and Shumoti, একটু আনমিউট করতে হবে. আপনারা তো নারী জাগরণ কমিটির সদস্য, তো অনিন্দিতা যেটা বললো যে আপনারা কাজ করছেন গ্রাসরুটে, একটু যদি বলেন যে কি করে আপনারা মহিলাদের ক্ষমতায়নের কাজ করছেন. My question to them is that they are members of नारी जागरण कमेटी, वो सदस्य है नारी जागरण कमेटी का, और वो अभी बताएंगे वो कैसे काम कर रहे हैं. सोनाली एंड सुमति. নমস্কার, আমি সুমতি। নারী জাগরণ কমিটিকে আমরা তো নারী জাগরণ কমিটি কিন্তু এলাকায় এই মহিলাদের, নির্যাতিত মহিলাদের পাশে দাঁড়ায়, এবং তারা মূলত যে পাড়া বৈঠক হয়, যেটা আমাদের সরকারি গাইডলাইনে লেখা আছে যে পাড়া বৈঠকে সবার ইস্যুগুলো সাধারণত ধরা হয় না, মহিলা এবং শিশুদের ইস্যু ধরা হয় না। তো নারী জাগরণ কমিটি কিন্তু আমাদের নভেম্বর মাসে পাড়া বৈঠক করে, এবং সেই পাড়া বৈঠকে মহিলাদের ইস্যুগুলো কিন্তু তারা নিজেরাই পাড়ায় পাড়ায় পাড়া বৈঠক করে তুলে ধরে, গ্রাম সংসদ সবাই সেটাকে পেশ করে, এবং যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের জিপিটিপি প্ল্যানে এই মহিলাদের ইস্যুগুলো উঠে আসে, এটা কিন্তু নারী জাগরণ কমিটি ভীষণ অ্যাক্টিভ ভাবে দেখে। সেই সঙ্গে তারা এই প্ল্যানটা কার্যকরী আদৌ হলো কিনা, অনেক সময় কি প্ল্যান জিপিডিপি প্ল্যানে ঢুকলো কিন্তু অ্যাকশন প্ল্যানে থাকলো কিন্তু সেই প্ল্যানটা কার্যকরী হয় না। তো প্ল্যানটা যাতে কার্যকরী হয়, যা পঞ্চায়েতকে ধরানো হলো মহিলাদের বিভিন্ন ইস্যুগুলো, সেগুলো যাতে কার্যকরী হয় সেটা দেখাও কিন্তু নারী জাগরণ কমিটির একটা বড় কাজ। তাতে করে পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলা, রাজনৈতিক লিডারদের সঙ্গে কথা বলে যাতে সেই প্ল্যান কার্যকরী হয়, এটা কিন্তু নারী জাগরণ কমিটি করেন। এবং এরকম বহু কাজ কিন্তু, যেমন স্কুলে ন্যাপকিন ব্যাংক নারী জাগরণ কমিটি কিন্তু বলে বলে করিয়েছে, জিপিডিপি প্ল্যানে ঢুকিয়ে কিন্তু করা হয়েছে। লেডিস টয়লেট কিন্তু আমাদের হয়েছে, এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার যেটা ভীষণ কম ছিল, এখন কিন্তু সিভিক ভলেন্টিয়ার নিরাপত্তা, মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর পরিমাণে আমাদের যে সমস্ত ফাঁকা রাস্তায় যেখানে সিভিক ভলেন্টিয়ার দরকার সেগুলো কিন্তু নারী জাগরণ কমিটি পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। এটা একটা বড় কাজ নারী জাগরণ কমিটি করেছে। এছাড়াও আরো একটা কাজ নারী জাগরণ কমিটি করেছে, সেটা হচ্ছে নির্যাতিত মহিলাদের পাশে থাকা, তাদের মনোবল বাড়ানো, প্রয়োজনে মহিলাদের নিয়ে থানায় যাওয়া, কোর্টে যাওয়া, এই সবগুলো কিন্তু নারী জাগরণ কমিটি খুব সুন্দরভাবে করছে এখন। ধন্যবাদ সোনালি. So what Sonali shared, that as members of Nari Jagaran Committee, they are always with the survivor women. They support them in legal aid, they support them with police connection and all that. Besides, the main thing they are doing is that in Para Boitok, which means, meetings at each ward level or local level, they try to put in the agenda of women and children. And some of their achievements are
keeping sanitary napkins in school, creating a bank of napkins, setting up of ladies' toilets, increase in number of civic volunteers. So that's how through the Para Boitok, then Gram Sanshad meeting, they are pushing the agenda of women in local planning. Okay, now I'll come to সুমতি। সুমতি, তোমরা তো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছো না, যাতে লোকের রোজগার বাড়ে, সেই নিয়ে কি করছো যদি একটু শেয়ার করো। হ্যাঁ দিদি, ওইটা সুমতি দি শেয়ার করেছিল। আমি সোনালি, সোনালি আর কি, sorry। হ্যাঁ, হ্যাঁ সোনালি বলো। আমি অর্থনৈতিক দেখো, আমরা নারী জাগরণ কমিটি গঠন হয়েছে নির্যাতিত মহিলার পাশে থাকা বা মহিলাদের অধিকার নিয়ে, কিন্তু সর্বোপরি যখন বাড়ি থেকে বার হয় যে দিনের শেষে কি ইনকাম করে আনছো, এই কথাটা মানে মাথায় রেখে ওদেরকে নিয়ে সরাসরি পাড়াতে বসে যে কি করতে চায়, নিজেরা কিভাবে স্বনির্ভর হতে চায়, এই নিয়ে বসে এবার ওরা ইউনিট করা হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে। যেহেতু আমাদের কাজ হয় আর বীরভূম পুরুলিয়া, এবারে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় দুটো ইউনিট আছে, একটা সাবানের ইউনিট যেখানে ওরা গ্লিসারিন সাবান তৈরি করে, সেখানে সরাসরি নিম গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে সরাসরি মানে একদম অর্গানিক, কেমিক্যাল নেই এখানে কোনো, এই সাবান তৈরি করে নিজেরা কিছুটা স্বনির্ভর হওয়ার আস্থা দেখছে। তাছাড়া বীরভূমে এখানে মশলা মেশিন আছে তোমার, আরো বিভিন্ন মেশিন আছে, এটা সুমতি দি বলবে। আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাটাও আমি বলি যে স্বনির্ভর করার জন্য আরো একটা সেলাই ইউনিট আছে, যেখানে ওরা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। কিন্তু মানে গ্রামের দিকে একটা এই চ্যালেঞ্জ যে এটা মার্কেট পাওয়াটা একটু অসম্ভব হচ্ছে, কিন্তু এই জন্য ওরা নিজেরা এগিয়ে এসে কাজটা শুরু করেছে। আচ্ছা, তুমিও কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের বীরভূমে মশলা মেশিন আছে, তাছাড়া মুড়ি মেশিন আছে এবং একটা রান্নার ইউনিট মহিলারা তৈরি করেছে। আমাদের যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ধরা হয় সেখানে 25 জন 50 জন 60 জন পর্যন্ত যদি আমরা কোনো ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়, দুপুরে মিলের ব্যবস্থা, তো আমাদের এই রান্নার ইউনিটের দিদিরা কিন্তু সমস্তটা নিজেরাই অ্যারেঞ্জ করে রান্না করে, তারা সেখান থেকে কিন্তু একটা ভালো রোজগারের রাস্তা নিজেরাই খুঁজে নিয়েছে। এছাড়াও যেটা আছে আমাদের পার্সোনাল ভাবে, গ্রুপ নয়, কিছু কিছু দিদিরা আছে বাড়িতে বড়ি তৈরি করেন, ঘি তৈরি করেন, প্যাড়া তৈরি করেন এবং সেগুলো কিন্তু তারা কলকাতা পর্যন্ত সাপ্লাই দেয় ইকো ডাইভার্সিটি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায়। তো এটা করে কিন্তু আমাদের মহিলারা আর্থিকভাবে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে অনেকটাই সচেষ্ট হয়েছে। थैंक यू। जो वो बताया तो उन्होंने नीम का गुड़ा, जो स्पाइस, हाँ, मसाला, হ্যাঁ, বেসন, ছাতু, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, এই সব কিছু কিন্তু ডাল চাল মুগ ডাল, बेसन, बेसन मीठा, ये सब बनाते हैं और ये कलकत्ता में भी मार्केटिंग करता है, बट मार्केटिंग एक चैलेंज है। হ্যাঁ अनिंदिता, মার্কেট, आप, হ্যাঁ हाँ, ठीक है, চ্যালেঞ্জ আছে। अनिंदिता, would you like to add to this? Yes, I'll just quickly add. So, what we are trying to do is a niche market, because these are all, we are not calling it organic at this stage, but these are definitely chemical free and harmful pesticide and color, free products. So the idea is to bring women and to find a market. And so we have also created a brand called Meto, and trying to market it around that. But like they were saying, इसमें बहुत सारे challenges है। एक तो internal challenge और external challenge। internal challenge जो है वो ये है कि जो औरत के लिए, मतलब ये रेगुलर ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रोडक्शन करते जाना, कैपिटल वो सब है, लेकिन मैं इंटरनल बाधा के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब मोबिलिटी इज एन इशू, sudden demand generates a lot of chaos, lot of issues within the home. तो ये इंटरनल बाधाएं है, और मार्केट जाना, प्रोक्योर करना, दूर जाना, तो ये सब एक इंटरनल बाधाएं अभी तक है। और एक्सटर्नल तो रेगुलर हम लोग जानते हैं, कैपिटल का है, मार्केट लिंकेज का है, स्टोरेज का है, ये तो है। लेकिन फिर भी ये सारे जो इनिशिएटिव था वो जरूरी हो गए कोविड के बाद,
और खास तौर से न्यूट्रिशन को लेकर जब कोविड के बाद ही ये आया कि ये लोग न्यूट्रिशन गार्डन और छोटे छोटे फार्मिंग को इंटीग्रेट करके ये प्रोडक्शन कर रहे थे, खुद सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, और थोड़ा बहुत जो भी whatever surplus they were selling it. So we tried to bring it into, you know, something that could be marketed, something that could give them an extra earning. But there are a lot of challenges that are there, but that was the initial goal. The initial goal was never to start with an entrepreneurial goal, because that's not our skill set. But slowly we are also realizing the importance of it, because political representation, political participation, and independence and freedom without economic independence is becoming problematic. Even, you know, supporting women survivors of violence, you need some money to accompany her to the police station, to health facilities. So where will this money come from? So even those, you know, are have propelled us to look into entrepreneurial development, but there are lots of issues. Yeah. Thank you. Thank you, Anindita. Now I'll go to Karigar Clinic. My first question is to Nupur. Nupur, कारीगर क्लिनिक में कारीगरों के साथ तो आप काम करते हैं, तो किस तरह का काम करते हैं आप? तो क्लिनिक नाम दिया ना आपका एंडेवर को, तो हाउ आर यू प्रोवाइडिंग सोल्यूशन? एंड आई एम श्योर जो अनिंदिता ने बताया उस तरीका का चैलेंज यू आर आल्सो फेसिंग, सो इफ यू कैन शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. थैंक यू. यस, श्योर. सबसे पहले थैंक यू बांग्ला नाटक, हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए. थैंक यू सो मच. अगर मैं बात करूं, हमने अपने करियर की शुरुआत क्राफ्ट सेक्टर से ही करी है, और शुरू से ही हमने देखा है कि इस सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओ हैं, कॉरपोरेट्स हैं जो क्राफ्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं. बट जो उसके असली निर्माता है, कारीगर, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. हमने ये देखा है कि जो भी बड़ा हो रहा है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉरपोरेट्स ही बड़े हो रहे हैं. जो कारीगर है उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, ना तो उनको उनके काम का सही कीमत मिलता है और ना ही उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में कुछ चेंज आ रहा था. तो हमने इस क्राफ्ट सेक्टर के इस गैप को हमने आइडेंटिफाई किया और कारीगर क्लिनिक की शुरुआत हमने की. और हमारा जो विजन है, हम कि कारीगर को उनकी पहचान दिलाकर उनको उद्यमी बनाना है. तो हमने इस विजन को अपना एक गोल बनाया है, और उसी दिशा में हमने अपना एक कारीगर क्लिनिक का बिजनेस वेलनेस प्रोग्राम, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हम चलाते हैं, जो टोटल 90 डेज का एक कोहर्ट है, जिसमें हम कारीगरों के साथ उनका 20 से 25 कारीगरों का हम एक कोहर्ट चलाते हैं, जिसमें हम उनका क्रिएटिव कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी हम इतना बढ़ाते हैं ताकि वो अपने गांव से ही एक छोटा सा बिजनेस रन कर पाए, वो भी अपनी पहचान के साथ. तो हमारा ये 90 डेज का टोटल प्रोग्राम, 90 डेज का हमारा जो करिकुलम है 90 डेज का, तो हम उसमें उनका 1-to-1 मेंटरशिप हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और उनकी जो बिजनेस जो कर रहे हैं उनका हम पहले बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं. उनको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम उनको समझते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको 4 तरह की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं: बिजनेस थेरेपी, डिजाइन थेरेपी, मार्केट थेरेपी एंड ब्रांड थेरेपी. ये थेरेपी के अकॉर्डिंग हम उनके बिजनेस को स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो अपने आप को इतना एबल कर पाए कि वो खुद तो आगे बढ़े, बट अपने साथ साथ 100 और 50 महिलाओं को और भी रोजगार दे सके. तो हमारा ये पूरा जो करिकुलम है 90 डेज का प्रोग्राम के थ्रू, और अभी तक हमने काफी कुछ, हमारे और भी इनिशिएटिव हैं उनके थ्रू, अभी हमने भारत के 12 राज्यों में 225 कारीगर एंटरप्रेन्योर को हमने तैयार किया है, और जो कि 50,000 से ज्यादा लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनसे 5 लाख से भी ज्यादा लोगों में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है. तो अगर मैं बात करूं कारीगर क्लिनिक की, तो अभी तक हमने
इतना उनको सक्षम बनाया है कि वो किसी और पे निर्भर नहीं रहते हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं और अपने गांव से एक छोटा सा बिजनेस वो चला रहे हैं। और हमारा ये कॉन्सेप्ट भी है कि स्मॉल इज पावरफुल एंड स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो अपने गांव से ही और अपने गांव में रह के कैसे वो लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट कर पाए, वो हमारा विजन है। तो अगर मैं बात करूं कि इंडिया में जो दो बड़ी प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इनिशिएटिव है हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं अपने कारीगरों के थ्रू। क्योंकि अगर क्राफ्ट सेक्टर की बात करें तो इसमें 200 मिलियन आर्टिजन्स हैं और इसमें काफी सारे लोग हैं। 30% लोग अपने ट्रेडिशनल काम को छोड़ चुके हैं और हर मिनट में 30 लोग शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। तो हमारा जो प्रयास है कि कारीगर जो है, जो अपनी हुनर को का इस्तेमाल करके अपने गांव में रहें और अपने साथ साथ और भी लोगों के लिए लाइवलीहुड और पॉजिटिव इम्पैक्ट वो क्रिएट कर पाए। तो मैं बस लास्ट में अपना यही हमारा जो विजन है उसे फुलफिल करते हुए मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि किसी भी पंछी को अगर पिंजरे में बंद करके रखा जाए और दाना उसे दिया जाए तो वो वाकई वो जी तो लेता है बट वो उड़ नहीं पाता है। बट अगर उसी पंछी को हम आजाद कर देते हैं और हम उसको इतनी ताकत देते हैं कि आप आसमान में उड़ो, तो वो अपना घोंसला भी बनाता है और आसमान को भी जीत लेता है। तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि कारीगर क्लिनिक ऐसे कारीगरों को वो पंख देता है ताकि वो आसमान में उड़ सके। और जैसे आप अनन्या जी, आप पहले बोल रहे थे कि इस डिजीज के बारे में आपने मेंशन किया, तो हमने ये फाइंड आउट किया है कि अभी तक 17 इस डिजीज में से क्राफ्ट सेक्टर 13 इस डिजीज को फुलफिल करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो क्राफ्ट सेक्टर के थ्रू कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं। थैंक यू नूपुर। हमारा अनुभव इज वेरी सिमिलर, क्योंकि मैं यस। बोला जो डायरेक्ट मार्केट लिंकेज इज व्हाट यू आर सेइंग, गिविंग द विंग्स, वो वो नहीं होने से तो वो पिंजरे में ही बंद होंगे। बहुत अच्छा। राइट। और राइट। और आई थिंक अभी हमारे साथ काजल और शिल्पा बेन भी है, तो वो भी अपना जर्नी शेयर करेंगी कैसे कारीगर क्लिनिक में इनफैक्ट उनके बिजनेस को ही नहीं, उनके लाइफ को भी कैसे स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, but Creo has joined us, so we'll just say hello to her and listen from her, and then we'll again come back to your women. Creo, Yeah. can you turn on the video, please? Hello, how are you? Good. Hello. Now, Creo is from Nagaland, and she is from an area called Phek, and her village is called Zapami. और आप Right, लोग right. शायद जपामी विलेज या फेक जिला के बारे में कभी सुने नहीं है, but in that such a remote area, Cleo, do you understand Hindi? Yeah, somehow. Okay, so in that remote area, Creo has been giving excellent leadership. So हम थोड़ा सुने बारे में और उसके बाद अरीना थोड़ा translation for the rest थोड़ा कर दो. So Creo, please share. We always think Northeast में women are very empowered, matrilineal society है, ये सब हम लोग discuss करते हैं, but reality is perhaps not the same. Perhaps women work more, right? Right, right. So what Very is true. women in Northeast and what you are doing, if you can share in next few minutes. All right. Well, my question is concerning the whole of Northeast India, but maybe I'll just narrow down to my You own focus state. to your community and your Yeah, you focus on right, right. So I'll just narrow it down to my own state, Nagaland, and come down to my own village, the status of women here. Yeah, so like when we talk about women and our economy, the economy in Nagaland, I have to admit, or we have to admit something. That is, like, women are everywhere in our economy, but like ma'am have said, reality is different. So there's still, women are still not equal in society. So for example, think about my village. Women here, we weave. That is, weaving is not just to keep our tradition alive, but to earn.
So the shawls, the mekhalas, and the hand-woven pieces, it pays for the students' school fees, for the children tuitions, and the food on the table. Moreover, many families, if we do a reality check, many families they survive because of what a woman produce from her loom. And not only that, women are also the cultivators. We plant, we weed, we harvest the paddy that feeds the entire family for the whole year. We also grow vegetables and we search for wild greens. Then we carry heavy baskets to the market. And if you walk, in case you walk through the local market in Nagaland, if you go through the bazaars in our town or in Nagaland, you will see that it's the women who is selling all the items, beans, chilies, pumpkins, bamboo shoots, all those things we take for granted on our plates. So their income is what pays for clothes, for medicines, for the education of the children. So in many ways, it is not an exaggeration to say women sustain the economy or of the households and our villages. But here's the painful part. Even though women bring so much to the family, to the community, inequality is still there. Like, for example, women, we cultivate the land, but we know here that we don't usually own it. So land rights and inheritance are in the hands of men. Women may grow rice. We may bring a lot to the family, but then we rarely hold the land title. And our labor, from here we notice that women's work is needed, women's labor is needed, but her control, there's no control. I mean, her control is very little. So another example is representation. Until just last year, I think, Nagaland had never selected a woman to state assembly in all these decades. Then into 2023, we finally saw 2 women, MLAs, and that was celebrated as historic. But it also shows how long women were excluded from political voice. So even in village councils and customary forums, women are often left out. So the strange reality, not so strange maybe, but women may run the markets, but men run the councils. So here we see that visibility, however, is not the same as equality. Then there's this way women's work is valued, weaving, vending, farming. These are time-consuming, skillful, and essential. But because it is called women's work, society treats it as less important compared to a salary job or a government post, which men often occupy. And even in villages like mine, where men and women do the same physical labor in terms of earning, we see that women are paid more less than the men for the same work and for the same effort. So a woman may not carry the work in the same way a man does, but she carries it fully in her own capacity. So her contribution is not lesser, it is simply different, and women deserves equal pay, which we are not receiving here. Another challenge is also faced by our traditional weavers. Women who weave in the backstrap loom, we create unique handmade textiles, but today we have to compete with mechanized looms, that can produce in bulk and floods the market with their products. So for a villager, for a village weaver, it is hard to match those quantities. So the question then is, should we our village weavers adapt and innovate, or should we as consumers learn to value the slow passion work of traditional weaving over mass-produced fabrics? Because if we do not recognize the worth of their craft, this age-old skill may lose grounds to machines. On top of that, there's this very little support structure.
Market women, we face challenges. Like earlier, one of our men have shared, we face challenges with transport, storage, and safety. So weavers also struggle to get fair prices or connect to bigger markets. And cultivators, women farmers, we also carry the double burden. That is farm work and household care. And that unpaid care work is hardly recognized. We do it, but it's invisible. So why is there inequality despite women's participation? That's the question. It's not about women are not capable. It's not about that. We already are doing so much, doing all the hard work. But the problem is the structure around them. It's the structure around it. We have labor, but we have no land. We have markets, but we have no representation. We have skills, but no recognition, very limited recognition. So if we want gender equality in my home, in my state, in my village, we need to change that and give women no access to land and credit. We have to make space for their voices in decision making, recognize and value. We need to recognize and value weaving and cultivation as the backbone of our economy, which already is, because the truth is women don't just add to the economy in Nagaland. We sustain it. We're sustaining it, the economy. So the challenge is for society to finally recognize that and give them the equal space they deserve. Yeah, thank you, ma'am. Thank you for this time. Thank you. In fact, today's theme is about rights. और अगर हम ये अधिकार आधारित दृष्टिकोण से देखें, अनिंदिता शेड वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से शुरू किए थे, बट अभी economic empowerment is so important, and you were sharing just the opposite, that you started with economic empowerment, but that's not enough क्योंकि decision making और representation का जरूरत है. Now I'll invite Arina to share a short summary in Hindi for the women who cannot understand English, and then maybe you can have a discussion with them on their perspectives. Yeah, Arina, over to you. श्योर क्रियो बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो माहौल है, नॉर्थ ईस्ट का जो कंडीशन है वो बहुत अलग है. प्राइमरीली नागालैंड की महिलाओं के बारे में बात कर रही थी कि वहां पे महिलाएं बहुत काम करती है, बहुत स्किलफुल है. वो फार्मिंग में भी पार्टिसिपेट करती है, कल्टीवेशन करती है, वो वेजिटेबल्स मार्केट में सेल भी करती है, और बहुत सारा जो सिलाई का काम करती है. पर रिकॉग्निशन बहुत कम है. पुरुषों के तरह है या पुरुषों के से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत भी करती है, पर रिकॉग्निशन कम है. तो जो अनन्या दी भी बोल रही थी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कम है. तो जब लास्ट ईयर और कुछ साल पहले जब 2 महिलाएं MLA जब चुनी थी, तब सब लोग बहुत प्रोत्साहन कर रहे थे. पर ये सोचने की अभी जरूरत है कि इतने वर्ष बाद जब महिलाएं इतना सारा काम कर रही है, पर पॉलिटिकल लीडरशिप में क्यों इतना टाइम लग रहा है. पॉलिटिकल लीडरशिप अभी भी एक जगह है जहाँ पे हम लोगों को काम करना चाहिए. और बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट क्रियो ने बता रही थी, वो है ओनरशिप, लैंड ओनरशिप. काम तो कर रही है, बच्चों को सपोर्ट कर रही है, फैमिली को सपोर्ट कर रही है, मेडिसिन का जो खर्चा महिलाएं उठाती है अपने स्किल से, अपने जो वो काम करती है वहां से. पर ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनरशिप अभी भी नहीं है. तो बहुत सारा अभी भी डिस्क्रिपेंसी है जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए. तो मैंने बहुत शॉर्ट से बताए हैं, पर आई एम श्योर आप सभी को समझ में आया है. थैंक यू. So now, Arina, will you ask them the question? कारीगर जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा. हाँ, नमस्ते शिल्पा जी और काजल जी, आपको सुनाई दे रहा है? आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए शिल्पा जी. थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए. हाँ, यस, हाँ मैम. अच्छा. हाँ, नमस्ते. नमस्ते. अच्छा,
अभी हम लोग बात कर रहे थे नागालैंड के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में। अभी सभी गांव में या सभी शहर में एक ही ऑलमोस्ट महिलाओं का एक ही कंडीशन है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर मोरलेस सेम ही कंडीशन है। तो अभी एक स्पेशली गांव में महिलाओं का जो कंडीशन है, वहां पे बच्चों को देखना, घर संभालना, ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट एक काम है। और ये ऐसा किया जाता है कि ये ही एक काम है जो महिलाओं को संभालना चाहिए। और इसको लेके हम बहुत सालों से हम सभी लड़ रहे हैं, है ना। तो अभी आप एक गांव से हैं, आपने आपका ये स्ट्रगल के बारे में अगर हमें थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं, कैसे अपनी पहचान आपने बनाया है, ये सब सब कुछ जो बाधा विपत्ति है इसको आप ओवरकम करके अगर आप बता सकते हैं। और उसके बाद आपके साथ कारीगर क्लिनिक का कैसे पहचान हुआ, आपने अपना नाम, आपका पहचान कैसे बनाया है? यस, नमस्ते। मेरा नाम शिल्पा पतारिया है। मैं कच्छ के पुजपर गांव से हूँ। मेरा एक छोटा सा सपना था कि मैं अपने हुनर से अपनी पहचान बनाऊं। मुझे हैंडीक्राफ्ट से बैग बनाना बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि इस हुनर को आगे बढ़ाऊं। पहले मैं गांव की महिलाओं के लिए ही छोटे छोटे बैग बनाती थी और उन्हें बेचती थी। वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपने काम को और बड़ा बना सकती हूँ। लेकिन घर और परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों को देखभाल, रोजमर्रा के कामों में संतुलन बनाना बहुत मुश्किल था। परिस्थितियां ऐसी थी कि काम करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि एक की नौकरी से घर चलना मुश्किल था। तब मैंने ठाना था कि मैं अपने हुनर को व्यवसाय में कैसे बदल सकती हूँ। मेरी रोल मॉडल पाबी बेन है। मैं उन्हें देखती थी तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन व्यवसाय में कई परेशानियां आती थी, क्योंकि मुझे इसके व्यवसाय के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। मैं एक छोटे से गांव से थी। फिर मुझे कारीगर क्लिनिक के बारे में पता चला इंस्टाग्राम से, और वहां से मुझे जैसे कि नए पंख मिल गए हो। उन्होंने सिर्फ व्यवसाय नहीं सिखाया है हमें, बल्कि मेरी सोच और मेरे आत्मविश्वास को पूरी तरह से बदल दिया है। मैंने वहां से सीखा है कि ग्राहकों को तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, 80-20 नियम, कम्युनिकेशन स्किल, और हमने बहुत कुछ वहां से सीखा है। आज मेरे व्यवसाय में नई ऊंचाइयां मिल रही है मुझे। मैं सिर्फ सपना देखने वाली नहीं रह गई हूँ अभी, बल्कि कारीगर क्लिनिक की मदद से मैंने अपने सपने को हकीकत में बदला है। कारीगर क्लिनिक की वजह से मुझे मेरे ब्रांड नेम मिला है, बैग वाली बाय शिल्पा पतालिया। मेरा व्यवसाय रजिस्टर्ड हुआ है। मुझे नई पहचान मिली है। मेरा लोगो बना हुआ है। मेरे लिए विजिटिंग कार्ड तैयार हुए हैं। ये सब कुछ कारीगर क्लिनिक की वजह से हुआ है। अब मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं बैग वाली बाय शिल्पा पतालिया की मैं ओनर हूँ। मैं दिल से कारीगर क्लिनिक का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे सपनों को हकीकत में बदला है। थैंक यू। बहुत थैंक यू सुंदर। शिल्पा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है। ये जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, आई एम श्योर आपने ये भी सीखा है, कम्युनिकेशन का जो क्लासेस, कम्युनिकेशन थेरेपी जो मैडम बता रही थी। तो आपने, आई थिंक आपने सब कुछ यूटिलाइज किया है। जो ट्रेनिंग हम बहुत बार देखते हैं कि ट्रेनिंग हम देते हैं या हम सीखते भी है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना और कम्युनिकेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है। बिल्कुल। अरीना जी, मैं यहाँ पे एक ऐड ऑन करना हाँ प्लीज चाहूंगी। प्लीज। हाँ, हम जब उनको ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हम कम्युनिकेशन के साथ साथ हम उनको सिखाते हैं कि आपको स्टोरी टेलिंग भी कैसे करना है। क्योंकि वो लोग काम तो करते हैं, बट अल्टीमेटली मैटर करता है वो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन। आप जिस परिस्थिति में काम कर रहे हो उसको आपको लोगों को बताना है, क्योंकि हाथ से काम करना इट्स नॉट इजी। सबको लगता है कि वो क्यों इतना महंगा है, बट फिर उसके पीछे का जो मेहनत है ना, वो आपको लोगों को बताना होगा। तो हम उनको वो सिखाते हैं। और हमारा एक और इनिशिएटिव है कारीगर टैंक, लाइक शार्क टैंक इंडिया।
तो फिर हम उनको वो पिचिंग करने भी सिखाते हैं। जैसे अभी शिल्पा बहन ने काफी अच्छे तरीके से उन्होंने अपना पूरा जर्नी को बताया, तो हमारा वो एक पार्ट है अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है कस्टमर के सामने, या फिर किसी से भी आप बात करते हो तो फिर वो एक बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो हमारा एक ये भी पार्ट है कि हम जो आपको सिखा रहे हैं ना, वो आपको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपको पता लगेगा कि फिर आप जो कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन है या नहीं है। तो आई थिंक शिल्पा बेन बहुत अच्छे तरीके से अभी खुद को वो अभी रिप्रेजेंट करा है, और उन्होंने हमारा कारीगर क्लिनिक का गोल्ड अवार्ड भी उन्होंने जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी थैंक थोड़ा यू। काजल से सुने हम, मरीना। काजल जी, आप हाँ हाँ, काजल जी, अगर आप नम- भी बता सकते हैं आपका जर्नी, आप भी एक गांव से हैं, आपने कैसे सब कुछ चैलेंजेस को आपने एड्रेस करके यस यस। आप। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम काजल दनीजा है। मैं कच्छ के एक छोटे से गांव रामानिया से हूँ। मैं एक क्रोशेट आर्टिस्ट हूँ और मेरी ब्रांड का नाम क्रोशेट क्राउड है। कठिनाइयां मेरी जिंदगी में बहुत थी। जिंदगी ने मैंने बहुत सारा स्ट्रगल देखा हुआ है। और शादी के बाद डिवोर्स हो गया। तो तब तो जैसे ऐसे ही लगा कि जिंदगी जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है। लेकिन उस वक्त मैंने हार नहीं मानी और मैंने ये डिसाइड किया कि यही सही वक्त है कि मैं खुद को साबित कर सकती हूँ और अपनी कहानी खुद लिख सकती हूँ। और फिर मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। और जब मैं मिली कारीगर क्लिनिक से, वहाँ वहां जाके मैंने सिर्फ बिजनेस नहीं सीखा, बल्कि मैंने खुद को भी नई तरह से पहचाना। नीलेश सर और नूपुर मैम ने सिखाया कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, चाहे आप कोई भी छोटी सी जगह से क्यों ना हो। अम, तो तब मैंने सीखा कि कारीगर क्लिनिक से ही मैंने सीखा कि जिनकी जिंदगी में संघर्ष होता है वो ही लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारा स्ट्रगल था, संघर्ष था। लेकिन तब मैं यही सोचती थी कि ज्यादातर महिलाएं अक्सर यही सोचती है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर पढ़ाई के अभाव के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण भी हम कहीं ना कहीं रुक से जाते हैं। तो तब मैंने मेरी ब्रांड स्टार्ट की और मुझे रास्ता खुद ब खुद आगे मिलता गया। और कारीगर क्लिनिक में हमने सीखा था कि अपना प्रकाश स्वयं बने, खुद को ही पहचाने और खुद के ही काम से आगे बढ़े। तब मैंने उस बात को ध्यान में रख के ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 42 आवर्स कंटिन्यू क्रॉशेटिंग करके मेरा खुद का एक रिकॉर्ड बनाया। और उसमें मैंने अवार्ड जीता और आज मैं एक रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और क्रोशेट क्राउड के साथ मैं आज 27 महिलाओं के साथ मैं अपना ब्रांड रन कर रही हूँ। और आगे भी मेरी यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मेरे साथ जुड़े और हम जैसे हमने आज तक अपना सपना कंप्लीट किया है, पूरा किया है, वैसे और भी महिलाएं अपना सपना पूरा कर सके। थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू। विकास। एक्चुअली ये जो हम करते हैं, ऑनलाइन टॉक या जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट मोटिव है कि हम इंस्पिरेशन बनाएं। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं गांव में, शहर में, जगह जगह में, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स है और हमें डर लगता है। पर आपके जैसे स्टोरीज अगर हम ज्यादातर सुन पाए डिजिटल माध्यम से या सामने बैठ के या पढ़ के, ये बहुत एक इंस्पिरेशन दायक है। थैंक यू सो मच। আমরা এবার লক্ষ্মীর কথা শুনবো। লক্ষ্মী, একটু ভিডিওটা আর সাউন্ডটা চালাও। अभी हम थोड़ा सा बंगाली में बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में, हिंदी सबको समझ में आती है। लक्ष्मी दी, अच्छा। আনমিউট করতে হবে লক্ষ্মী। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না যে। না, আছে, ও করেছে, হ্যাঁ এই যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লক্ষ্মী সাহু। লক্ষ্মী দি, তুমি একটু তোমার জার্নি শেয়ার করো। নমস্কার। নমস্কার।
তুমি একটু তোমার জার্নি শেয়ার করো। তুমি সবার মুখে শুনলে এতক্ষণ ধরে, তুমি যে এই বিরাট লড়াইটা লড়ছো বহু বছর ধরে, এখন আস্তে আস্তে এখন নিজে একটা দাঁড়িয়েছো একটা জায়গায়, তুমি যদি আমাদের সকলের সাথে একটু শেয়ার করো তুমি কি নিয়ে কাজ নমস্কার, করো। আমার নাম হ্যাঁ। লক্ষ্মী সাউ। আমি মেদিনীপুর জেলা সবং থানা অন্তর্গত বরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। আমি একজন শিল্পী। তো আমি মাদুর বোনাটা শিখেছিলাম ছোটবেলা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে। তো বাপের বাড়িতে খুবই অভাবের মধ্যে দিন কাটছিল। তারপরে বিয়ের পরে দেখি শ্বশুর বাড়িতেও সেই একই অভাব। তখন আমি আমার মাদুর বোনাটা শুরু করি। তারপর 2013 সালে আমি এসএইচজি আমি একটা এসএইচজি দলের সাথেও যুক্ত। তো ওই দলের নাম হচ্ছে বর্ষারা নারী কল্যাণ স্বসহায়ক দল। ওই দলের মাধ্যমেই আমি একটা সরকারি ভাবে ফোল্ডিং মাদুরের প্রশিক্ষণ পাই। 2013 সালে আমি এই দলের মাধ্যমে আমি একটা সরকারি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলাম, সেখানে ফোল্ডিং মাদুরের। তারপর 2015 সালে বাংলানাটক.com এর মাধ্যমে আমি মসলান মাদুর বোনা শিখি এবং কাঠি কালার করা শিখি। The story is very interesting, They had a very fine mat weaving tradition. बहुत fine mat weaving tradition उसको बोलता है मसलन, और वो बहुत महंगा है और दहेज में और डाउरी में शादी के टाइम में वो गिफ्ट था, बट वो अभी वो कमर्शियली सेल करता है। और 2015 সালে আমি ওই বাংলানাটক.com এর মাধ্যমে আমি একটা মেলা পাই প্রথম। তো মেলাতে গিয়ে দেখলাম আমি এখানে যা তৈরি করে এখানে পাইকারিতে যা বিক্রি করতেছি, তো সেখানে মেলাতে গিয়ে দেখলাম আমি তার অনেকটা মানে 3 বেশি সেটা বিক্রি করতে পারছি। তখন আমি প্রথম সেখান থেকে আমার ব্যবসা করা মানে ঝোঁক বাড়ে। তো এসে আমি ওই দুজন মহিলাকে নিয়ে প্রথম আমি আমার ব্যবসা শুরু করি। দিয়ে এই ব্যবসা করতে করতে তারপর আমি আইআইএম এর সাথে যুক্ত হতে পেরেছি। তারপর সানমার্ক অপরাজিতা হিসাবে ওখানেও আমি নির্বাচিত হয়েছি। I'll come now to Nilesh ji. Nilesh ji, you have been hearing, and I'm sure you are connecting with all these experiences. And we also resonated a lot when we heard about Karigar Clinic's experiences. So my question to you, जे आज जो समय है, ये जो प्रोग्रेस हुआ है, काफी प्रोग्रेस हुआ है वीमेन एम्पावरमेंट और क्राफ्ट सेक्टर में। तो आज इस समय में कारीगरों की जरूरत के देखते हुए आपके हिसाब से नीति स्तर पर सबसे जरूरी क्या है, और प्लानर्स जो है हमारा देश के, उनके लिए आपकी प्राथमिक उपदेश क्या होंगे? जी बिल्कुल। आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेन को स्ट्रेंथन करने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। पर आज के समय में हमें लग रहा है कि एक नया समय विमेन के लिए स्टार्ट हुआ है, विच इज कॉल्ड द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें लग रहा है कि कुछ नीतिगत या पॉलिसी लेवल पर कुछ बदलाव होने चाहिए। इसमें सबसे पहला जो बदलाव है, हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रही है स्टार्टअप इंडिया, और उसका डेफिनेशन है कि आप कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसको ही स्टार्टअप मानते हैं। बट मुझे लग रहा है कि भारत भर की जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स है बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल काम कर रही है। तो आई थिंक जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसको भी स्टार्टअप का दर्जा मिलना चाहिए, और उनको भी जो सीड फंड की जरूरत है वो मिलनी चाहिए। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको स्टार्टअप का दर्जा मिले, और गवर्नमेंट स्कीम जो स्टार्टअप के लिए चल रही उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। नंबर 2, बहुत सारी महिलाएं जो काम करती है और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में वो बहुत अच्छे सुंदर प्रोडक्ट बनाते हैं, पर अल्टीमेटली क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको खरीद लेती हैं और उनको बेचती है अपने नाम से। तो यहाँ पर मैं 2 बातें करूंगा। पहली बात है कि सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए एंड प्राइस ट्रेसेबिलिटी।
कोई एक प्रोडक्ट आपके पास पहुंच रहा है तो उसमें कितनी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए, कस्टमर्स को पता होना चाहिए। एंड इफ कस्टमर इज पेइंग 100 रुपीज, वो पैसा आर्टिसन को कितना मिल रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो हमारा तो डिमांड है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कारीगर क्लिनिक डिमांड करता है कि जैसे राइट टू एजुकेशन है उस तरीके से राइट टू आइडेंटिटी नाम का बिल होना चाहिए, जिसमें ये कंपलसरी हो जाए कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट की चीज बनती है जो विमेन बना रही है उसके ऊपर उसका ही नाम होना चाहिए, बनाने वाले का, नॉट तो बेचने वाले का। बेच कोई भी सकता है मार्केटेड करके, बट बनाने वाले का नाम कंपलसरी होना चाहिए। तो उससे फायदा ये होगा कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में कंज्यूमर तुरंत से पता कर पाएगा कि ये चीज किसने बनाई है, और वो आर्टिसन के लिए, वो महिला के लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे, मार्केट उनके तक रीच कर सकता है। हमारा एक थर्ड पॉइंट है कि ये पूरा जो क्राफ्ट इकोसिस्टम है या हमारी जो लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी है, तो उसको बूस्टिंग मिलना चाहिए। तो ये बूस्टिंग कैसे मिल सकता है? तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी लेवल पर कुछ बदलाव करने चाहिए ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर को खास करके बेनिफिट हो। जैसे गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि एवरी सीएसआर कॉर्पोरेट शुड स्पेंड सम अमाउंट बिहाइंड द सीएसआर। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स और पीएसयूज के बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनको गवर्नमेंट सैलरी पे करती है, अबाउट 1.5 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो क्या ऐसा प्रोविजन हो सकता है कि साल में एटलीस्ट 5,000, 10,000 और 15,000 दे हैव टू स्पेंड फॉर बाइंग हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वुमेन आर्टिसन? तो एटलीस्ट अगर आप 1.5 करोड़ एम्प्लॉइज की बात करते हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, इफ दे स्पेंड 10,000 रुपीज इन अ ईयर, 1,500 करोड़ रुपया ये सेक्टर में आ सकता है, विमेन के पास आ सकता है। तो इस तरह से उसको बूस्टिंग मिल सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट का जो शिफ्टिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ मैनी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड टैरिफ प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट मूव हो रही है स्वदेशी की तरफ। तो आई थिंक एक स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, आज से 120 साल पहले शुरू हुआ था। आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट अनदर स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी 2.0, जहां पर मुझे लग रहा है, आई एम वेरी होपफुल दैट women entrepreneur will play a significant role in this movement. Thank you. Thank you. I'll next go. Very important advice, and we are with you. हमारा काम का एक स्ट्रैंड ही है आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हाँ, ये जो क्रिएटिविटी है, पूरी दुनिया का क्रिएटर का कुछ राइट होता है, हमारा आर्टिस्ट लोगों को, हमारा क्राफ्ट्स पर्सन को वो राइट नहीं है। थोड़ा जीआई से कुछ तो सुधार हुए हैं, बट स्टिल वी रियली नीड गुड पॉलिसीज ऑन दैट, क्योंकि आइडेंटिटी के बात आप जो किए हैं। और पूरी वर्ल्ड में ना ऐसा रूल है, जैसे आपने बताया, हमारा इंडिया में नहीं है कॉर्पोरेट में, बट वी कनेक्ट बोल के एक इनिशिएटिव है, विल शेयर विथ यू, जो इंटरनेशनली दे आर मैंडेटेड, और ग्लोबली वो मैंडेट पूरी नहीं होता है। तो हमारा भी कॉर्पोरेट प्रोग्राम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सच थिंग्स कम. Now I'll go to Anindita. Anindita, Creo pointed out a very important issue of land right, and I'll also come to you, Nupur and Nilesh, on this. Rights on, the property on the land, or decision making. This we all recognize is very important. Anindita, you have been working on it. थोड़ा आपकी experience share कीजिए, और सबको हम बोलेंगे, अगर किसी को कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं, but let's start with Anindita. एक्चुअली क्रेयो की बात सुन रही थी और एकदम जो बोलते हैं ना, बट हिटिंग द नेल ऑन द हेड, कुछ सिस्टमिक मुद्दे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। प्राइमरी तो है प्रॉपर्टी राइट्स, लैंड राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। और जो हमारे जो एक्सपीरियंस रहा है, इफ यू लुक एट हिंदू वुमेन्स राइट्स, तो प्रॉपर्टी में कुछ साल तक अभी इक्वल राइट्स है, लेकिन
अपनी नेटल फैमिली को मतलब खुश रखने के लिए एक सपोर्ट बनाए रखने के लिए women do not ask for those rights. मतलब मैरिटल होम में तो राइट्स उनका नहीं बनता है, रेजिडेंस राइट्स है, प्रॉपर्टी राइट्स तब बनता है अगर विडो बन जाती है, लेकिन जो राइट्स जहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स बनता है वो है नेटल फैमिली में। लेकिन वहां पे वो आगे बढ़ के ये राइट्स नहीं मांगते हैं, और हम लोग यही देखते हैं कि क्रेडिट देने के लिए किसान जो क्रेडिट कार्ड्स है वो विमेन एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि उसके साथ प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। तो मुझे ये लगता मुझे ये खास तौर से लगता है कि ये जो मुद्दा है उस मुद्दे को प्रॉपर्टी राइट्स, लैंड राइट्स के तरफ ले जाना ही है। नहीं तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वुमेन दे डोंट हैव एक्सेस टू दैट, नंबर वन। दूसरा, एक ओनरशिप ऑफ एसेट्स भी नहीं है। इसको लेकर थोड़ा बहुत काम हो रहा है लेकिन बहुत सारे मैंने इंटरनल बैरियर के बारे में बात करी, तो वो भी एक इंटरनल बैरियर है। मैं कैसे मांगू अपने परिवार से, पिता से, भाई से, मैं अपनी हक को कैसे मांगू? तो मेरा जो रिलेशनशिप है वो नहीं रहेगा ठीक ठाक। तो ये जो एक बहुत बड़ा चीज है। और दूसरा भी आई थिंक इस डिस्कशन में आया है, दूसरा जो सिस्टमिक मुद्दा बन जाता है वो है केयर इकोनॉमी। हम लोगों को वो उसको लेकर बात करना ही है कि डबल बर्डन को कैसे रिड्यूस किया जाए। अभी जो हो रहा है पूरा जो फोकस है क्योंकि औरतों के ऊपर जाते हैं, तो अभी एक औरत के लिए वो सुबह 6 बजे उठ के काम करती है, लास्ट में सोने जाती है, अभी वो लोग 4 बजे उठ रहे हैं। तो ये जो बुनियादी मुद्दा है कि हम डिवीजन, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कब बात करेंगे और उसको लेकर कब शिफ्ट मतलब होगा, वो ये जो अनइक्वल संपर्क है घर में और काम पे जगह में, तो ये भी एक बुनियादी मुद्दा है। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर ये बात होना चाहिए। और तीसरा मैं एक मुद्दा रखूंगी, वो है जो डिजिटल डिवाइड है, कैसे हम इसको ब्रिज करें। अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के जो बिजनेस रन हो रहा है ऑनलाइन डिजिटल फोरम में, तो ये भी हम लोगों को पता है कितना वाइड गैप है। इसको ब्रिज करने के लिए क्या किया जाए? तो मुझे लगता है मतलब ये तीन बहुत बुनियादी मुद्दा है। टेक्नोलॉजी के ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसको कैसे लिंक किया जाए, लेकिन खास तौर से वो दोनों मुद्दा मुझे लगता है प्रॉपर्टी राइट्स और केयर इकोनॉमी में मतलब हिस्सेदारी को छोड़ना, मतलब मर्दों को हिस्सेदारी बांटना, मतलब राइट, महिलाओं की ये राइट है कि उस पर भी डिवीजन के बात हो। और ये मुद्दा को कैसे हम पॉपुलराइज करें, कैसे इसको लेकर बातचीत हो पाए, ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हम राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, खास तौर से महिलाओं के अभी so their landscape of their involvement is increasing, so they are getting involved in a lot of things, but their responsibility and their rights are diminishing. I mean, basic, sharing of power, sharing of their responsibilities, there are no takers for that. I think it is important that we actually put that out in this, wherever, in whichever sector we are working on, we talk about these, three things. Thank you. नुपुर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग कैसे एक साथ ये जो समस्या है, और वी ऑल फेस द सेम चैलेंजेस, हम लोग कैसे एक साथ ये बात कर सकते हैं, जैसे अनिंदिता ने बोला खुद, हाउ कैन वी बिल्कुल। कम आई टुगेदर? थिंक आई वुड लाइक टू आंसर। ओके, ठीक है। तो दो चीजें जो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताई है उन्होंने, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि विमेन की हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए। तो आई थिंक राइट टू आइडेंटिटी और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है, आई थिंक वो को रिलेटेड है। जब आइडेंटिटी मिलती है तो सब जगह वो प्रॉपर्टी में भी उनको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फिर
केयर इकोनॉमी की जो बात करी है, कुछ कंट्रीज में तो मतलब कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये स्टार्ट हो चुका है। रिसेंटली आई विजिटेड यूएसए, और वहां पर मुझे एक वॉलंटियर्स मिले थे। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि आज मेरा आना लेट हो गया क्योंकि आज मुझे घर पर खाना बनाने की मेरी जिम्मेवारी थी। तो वहां पर वो स्टार्ट हो गया है। तो आई थिंक इंडिया में भी ये होना चाहिए कि सिर्फ विमेन का कैरिंग या हाउस होल्ड एक्टिविटी करना उसकी जिम्मेवारी नहीं है, बट धीरे धीरे उसका मेल भी उसमें पार्टिसिपेट करे, वो बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजों में विमेन की हिस्सेदारी, प्रॉपर्टी वाले में और कैरिंग इकोनॉमी में, तो समान हिस्सेदारी होनी चाहिए और उसका समान नाम भी होना चाहिए। तो हम इसकी एडवोकेसी करते हैं, और डेफिनेटली ये जो जॉइंट में कुछ अगर एक्टिविटी करनी है तो वी वुड बी हैप्पी टू वर्क ऑन दिस, आनंदिता जी। और डेफिनेटली ये मुद्दा जो आपने उठाया है उसको हम लोग साथ में मिलकर भी उठा सकते हैं। ठीक है, हमारा इधर सोनाली, सुमति, काजल, शिल्पा, लक्ष्मी। आप तो सुना ना आज की जो डायलॉग हुआ है, तो आपका कुछ बोलने का है इस बारे में, जो हम लोग बताया आइडेंटिटी के बारे में, प्रॉपर्टी राइट के बारे में, और ये घर वाला जो काम का जो एक्स्ट्रा बर्डन है महिला के ऊपर, उस बारे में आपका कुछ सुझाव है इस बारे में? হ্যাঁ, আমাদের এই দিকটায় মানে এই যে মেয়েদের নামে জমি বা নিজেরা কাজ করছে যে একটা পরিচিতি, এটা ধরো একটা যখন আমরা নারী যখন কমিটি হিসাবে কাজ করছি তখন একটা এলাকায় পরিচিতি গড়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু মানে এই যে জায়গা জমির অধিকার মেয়েদের আইনত থাকলেও মানে বাড়ি থেকে এরকম নেই যে মেয়েদের নামে একটা জায়গা জমি করে দিল, তাদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড হলো, এরকম খুব কম। মানে বাবা মা চায় যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে মানে ওরা ওই লোকের বাড়ির সম্পত্তি, এখানে এই সম্পত্তির ভাগ মানে ছেলেরা পাবে, মানে এইটা একটা চলে আসছে। মানে যে জমির অধিকার খুব একটা মেয়েদের মধ্যে আছে, জমি সম্পত্তির মালিক, এদিকটায় মানে এতটা এখনো মানে আইনভাবে কার্যকরী হয়, আইনে আছে কিন্তু বাবা মা কার্যকরী করেনি। तो वो जो बताया আর कि আরেক ये आइन है, ये लॉ है, बट किसी का परिवार में कन्या को पोर्शन नहीं मिल रहा है। শুনতে কি কিছু হবে? তবে দিদি আমাদের এই যে অধিকারগুলো আমরা ঠিক ঠিক আমরা যত কাজই করি গুরুত্ব পাই না, কিন্তু আমরা এটা ছেড়েও দেব না। আমরা আমাদের জায়গা থেকে যতটা পারবো নিজেদের কাজগুলোকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। আজকে পাচ্ছি না গুরুত্ব, কিন্তু আমাদের এই কাজ আমাদের অন্য কাউকে আমরা তো উদ্বুদ্ধ করতে পারছি। অন্যান্য মহিলারা যারা আমাদের দেখে ঘর থেকে বেরোচ্ছে, উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, তারা বেরিয়ে আসছে, এটাও আমাদের কাছে একটা বড় পাওয়া। আজকে যে গুরুত্ব আমরা পাচ্ছি না, যে পরিচিতি পাচ্ছি না, পরিবার কিন্তু একটা দিন ঠিকই বলবে যে না এই কাজগুলো করেছিল বলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো কিন্তু করা বাকি সুযোগটা ওরা পাচ্ছে। তো এটা আমাদের কিন্তু করে যেতে হবে। থেমে গেলে, আমি গুরুত্ব পাচ্ছি না বলে থেমে কিন্তু যাব না। আমরা ঠিক একটা সময় আমাদের কাজের দ্বারা গুরুত্বটা ঠিক নিজেরাই অর্জন করতে পারবো বলে আমার মনে হয়। কিন্তু আমাদের থামলে চলবে না, পিছিয়ে গেলে চলবে না, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এবং সেটা আমাদের সংসারকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, আমাদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে, এবং আমাদের কাজকে আমাদের সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে বলে আমার মনে হয়। আর সম্পত্তির অধিকার আমরা এখনো সম্পত্তি অধিকার আইনত তো আমরা পাচ্ছি, কিন্তু আমরা নিজেদের জন্য অনেক সময় নিজেরা পিছিয়ে যাই যে বাপের বাড়ির সম্পত্তি নেব, ভাই আর আমাদের বাড়ি ঢুকতে দেবে না। এই যে ভাবনা, এই ভাবনা থেকে আমাদেরকেও বেরোতে হবে। যদি আমাদের প্রয়োজন মনে হয় যে আমাদের সম্পত্তি আমাদের দরকার, তাহলে সেটা আমাদের নিতে হবে। আর যদি আমাদের মনে হয় যে না ওই সম্পত্তির অধিকারের জন্য আমাদের বেশি ওই দিকটা ফোকাস না করে আমরা আমাদের কাজের দিকে ফোকাস করি, তাহলে ওই ব্যাপারটা আমাদের অতটা আমাদেরকে খারাপ লাগা তৈরি করবে না বলে আমার মনে হয়। Thank you. So what they're saying is that, it's a journey, but the fact that they are going out and doing work is inspiring others. And so what has not yet happened will happen if we continue the journey. शिल्पा, आप कुछ बताएंगे? यस आई थिंक यस, शिल्पा जी बताइए। बोलिए। हाँ, मैं ये बताना चाहती थी कि इक्वल काम करने का जो होता है, तो हमारे गांव में ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में हम सब रहते हैं, तो सब एक साथ
मिलकर काम करते हैं तो जेंट्सों को अलाउड नहीं होता है। वो कहते हैं कि हम काम करने के लिए नहीं है, सिर्फ लेडीज ही काम करने के लिए होता है। ये पारंपरिक पहले से उनको ये ट्रेन किया गया है। और अब मुझे ये बहुत लगता है कि मैं पूरे दिन काम करके आती हूँ और मेरे पति भी काम करके आते हैं, तो वो आराम करते हैं और मैं घर का काम करती हूँ। तो ये मुझे बहुत लगता है हम दोनों में बहुत बहस भी इस बात पे होती है कि हम इक्वल है तो इक्वलिटी इसमें भी होनी चाहिए। पर ये परिवार के कुछ होते हैं नियम कानून, उनसे वो जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं करे। पर मैं अपने बच्चों में वो ट्रेन डाल रही हूँ। मैं बच्चों एक छोटा सा बेबी है, मैं उनको ये ट्रेन कर रही हूँ कि आने वाली जो तुम्हारी होगी वो जॉब करेगी तो इक्वल आपको रहना होगा, तो आपको ये काम सीखना होगा। मैं इसमें इक्वलिटी मेरे बच्चे में डाल रही हूँ अभी। बहुत इवन सुंदर। अगर हम, हाँ राइट, अगर मैं बात करूँ डिसीजन मेकिंग की भी ना, तो विमेन बाहर जाती है काम करने के लिए, बट अल्टीमेटली उनका ये होता है कि आपको हस्बैंड से या फिर घर वालों से बात करनी पड़ती है कि मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर एक, मतलब उनका एक पॉइंट हमें चाहिए होता है कि अगर आप हाँ करो तभी मैं उसे सही मानूंगी। एक वो है मेरा एक पॉइंट, और प्लस ये है मोबिलिटी। जब हम काम करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जो हमें मूव करना रहता है काम की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो हमें हमेशा वो बांध के रखा जाता है कि आपको काम करना है बट विद इन लिमिट आपको वो काम करना है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर जब आप आगे बढ़ रहे हो तो हर तरीके से आपको फ्रीडम मिलना चाहिए विमेन को भी, ओके। क्योंकि आप कुछ भी आप पॉजिटिव चेंज करने के लिए ही आप मूव कर रहे हो। तो वो भी एक फ्रीडम का एक पार्ट होना चाहिए, इक्वालिटी का एक पार्ट होना चाहिए, जैसे हर मेल पार्ट को वो मिला हुआ है। Okay, तो now यहाँ we पे have सिर्फ, last 5 minutes. So my request to all of you is to think that, from whatever we have discussed today, what is one action you can take later? So Creo, first we'll start with you since you have got your presentation. Yeah. Yeah. Geographical remoteness and barrier is a problem for Nagaland, right? And you see, across India, we share very similar concerns. So what is your reflection? How can we really come together and, raise this important dialogue? I think we need to create dialogue, right? Earlier that Nagaland is like geographically off, but then I think the problem that women face all over India is universal. It's the same Indian problem, no? Women being undermined, underpaid, unrecognized. Those are the kind of problems we as women in general all over India face. So the change that like we need now is like what is coming to my mind is like two things that needs to be changed. And the first is structural change. And there need to be laws, no, that there need to be laws. We have a reservation bill that bill matters, and also we need wage parity laws. It should be enforced. Then the other thing is the mindset change. There needs to be a mindset change. Every one of us, because even women, we have internalized it. So we need to come out of this, out of our shell. We need to think, we need to know that we are important, we are valued, our life matters, and our voice matters. That's the mindset change that we women also need to undergo. And society as a whole, we must learn to value women's work equally. So today I'm narrating about my situation, Nagaland, or the weavers in my village, but whether it is a Naga weaver in Nagaland state, or whether it is a farmer in Bihar, or whether it is a domestic worker in Delhi, the work is different, but the value is the same. So there needs to be a mindset change. Society must learn to value women's work equally. So that's the two change that I want to bring for today: structural change and mindset change. Thank you. Thank you. লক্ষ্মী কিছু বলতে চাও? বলতে চাইলে আনমিউট করতে হবে। I'll come to Anindita. Anindita, based on the discussions we had, what one action you think you can take? I think one action would be, how
as groups, as networks, we always work in silos. Like हम अगर political participation में काम कर रहे हैं तो इसको कैसे देखें, अगर लाइवलीहुड को लेकर काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मुद्दा है या नहीं, मतलब ये जो साइलोज में हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग आज भी जो बातचीत हो रहा है, जो की चीज जो एक चीज जो उभर के आ रहा है वो है एक कॉमन थ्रेड जो हम सबको बांधते हैं। तो उसको अगर नैरेटिव शिफ्ट में लेकर जाए तो यही मुझे लग रहा था, मैं सोच रही थी इसको हम कैसे कलेक्टिव जो एक्सपीरियंस है और हमारी जो मांगे है उसको एक ही वॉइस में कैसे इसको प्रेजेंट करें। मतलब जो भी आप काम करो, हमारा तो मुद्दा है विमेन्स राइट्स, हमारा तो मुद्दा है विमेन का वैल्यू, काम पे उसका वैल्यू, तो वो एक ही स्वर में हम लोग कैसे किस तरीके से ये एक्सपीरियंस को सामने लाए, एक तब वही मैं सोच रही थी कैसे ये हो पाएगा। नूपुर एंड नीलेश, आपका कुछ सुझाव है? आई थिंक कारीगर क्लिनिक एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा मैंडेट रहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर्स तैयार करें। तो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें अबाउट 65% विमेन का रिप्रेजेंटेशन है। जो भी एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए उसमें 65% है। हम चाहते हैं कि इसको और 80% तक ले जाए, और हमने इसकी शुरुआत भी करी है। हमने सेपरेट मतलब कि विमेन स्पेशल कोहॉर्ट्स भी रन करना स्टार्ट किए जिसमें 100% विमेन आर्टिसंस होते हैं। तो आई थिंक ये हमारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन विश है, पर्सनल विश है कि हम लोग जो प्रोग्राम चलाते हैं वो फुली विमेन के लिए चलाए। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी। हमने एक विमेन स्पेशल बैच चलाया था, उसमें शिल्पा बहन भी थी। तो वो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, जो फुल्ली वो ट्रांसफॉर्म हुई है, जो पहले थी और अभी है, मतलब वो बहुत जो वो अपने सपनों के साथ वो जीती हैं, उससे वो कनेक्ट करती हैं कि मुझे अपने सपने को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है, लाइफ को कैसे अच्छी बनाना है। तो वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है वो। आई थिंक जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो हम बात करते हैं, तो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए भी, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और बाकी जो महिलाओं के साथ हम काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक वो माइंडसेट लाना और फिर उसके साथ जीना बहुत बड़ी बात है वो। Thank you. And I really thank all of you for giving your time. This is a very useful discussion. And we'll definitely take forward this, like creating a networks and platforms for dialogue. And I hope that all of you will continue to remain part of it. आज जो बात हुई है उसके लिए सबको शुक्रिया। और हम लोग ये आज ही लास्ट डे नहीं है, ये जस्ट शुरुआत हुआ। और जो अनिंदिता जैसे बताया कि हम लोग कैसे एक साथ ये जो चेंजेस का जरूरत है, जो प्रियो ने बताया, कुछ स्ट्रक्चरल है, कुछ माइंडसेट में है, और सब में बात करने से ही ये चेंज संभव है। हम लोग सभी काम कर रहे हैं, 20 साल हो गया, so we all know क्या it's difficult, but thank you for joining us and let's remain in touch. थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सब मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Bye. मच। Good night. Thank you बाय so much. बाय। Thank you, everyone.